Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With a prayer and hope for your well-being, let's start the program today. आज हम पाकिस्तान के अंदर ई लर्निंग की इंडस्ट्री के हवाले से बात करने के लिए जा रहे हैं। आप में से किसको ये पता था कि वन फाइन मॉर्निंग व्हेन यू आर गोइंग टू वेक अप you are going to see e-learning buzz everywhere, not only in your family, not only in your office, not only in your country, but in the whole world. आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात जितनी तेज़ी से हो रही है आज से पहले कभी नहीं हुई थी. What Pakistan thinks about it and where we do stand currently in terms of e-learning और e-learning का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है, ये कुछ और इसके अलावा भी बहुत कुछ, इसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील करता हूँ बिकॉज ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, who is a certified coach from Marshall Goldsmith, who has started a venture where he thinks that he is doing something unique for Pakistan industry. And he is founder and CEO of Zillion E-Learning. We are talking about Ilhan Chawla साहब. Let's see Ilhan साहब आज हमारे पास अपने wisdom की कौन सी चीज़ें शेयर करने के लिए लेके आए. Let's move to Ilhan and talk to him कि what he has for us today. Assalamu alaikum Ilhan भाई. Walaikum salam. Thank you so much, Shehzad Sab, for the introduction. I am honored. I am humbled, and I must say that it's not only me who is doing a unique job. I think it's you who is also doing a unique job. I have seen a couple of episodes of your program, and you have invited guests from across the boundary. I think you are doing great. Your show is doing great, mashallah. So I must congratulate you that the initiative that you have taken from this show, it's amazing, and my prayers are with you. Thank you very much once again for inviting me here. So it's not often that I get opportunity to talk about e-learning in Pakistan. This is something that I like to do, and I would love to do, in fact. So as you mentioned rightly in the introduction, that no one thought that we will be talking about e-learning not only in Pakistan but across the globe. And digital formation these days has taken a new trend and has taken a new turn as well. And every organization, every individual, people who are working from home, people who are sitting at home, they are bored of watching Netflix, they are bored of watching all the smart TVs and things like that. So people want to learn additional things. They want to learn about COVID, they want to learn about different aspects. So this is where e-learning comes in. And in my opinion, Pakistan already was lacking in e-learning, but with these situations from last 2.5 months, when people and organization, they are confined within certain spaces, working from their homes or doing tasks from their homes, e-learning is currently playing a huge role. And I think e-learning is here to stay post COVID-19 as well. And I'm pretty sure that we will talk more about this when we move forward in the show. Thank you very much for your comments, Ilhan. Ilhan, you must be knowing that I'm glad that you have given your introduction in English, because you must be knowing that there are few people who are watching from countries where Urdu is not understandable. But with the same at the same time, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में बैठ के आपकी बात सुन रहे हैं, और आज मैं आपके पास इल्हान भाई ऐसे नौजवान तबके का एम्बेसडर हूँ जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है या जो एक नया स्टार्टअप शुरू किए हुए खड़ा है, और हु इज़ इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एट द मोमेंट. उसको ये नहीं पता कि अब मैंने क्या करना है. व्हेन लॉकडाउन नरम तो हो गया, लेकिन अभी स्टिल बिजनेस अपनी पूरी फुल फ्लैश थ्रॉटल पे नहीं आया. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू अबाउट योर कमेंट्स कमिंग इन द सेम लैंग्वेज. अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे आप इल्हान साहब कि आपने ई लर्निंग के ब्रॉडर एस्पेक्ट और मैक्रो लेवल की बात तो कर ली. लेट्स शेयर फ्यू ऑफ द थिंग्स अबाउट इल्हान चावला फर्स्ट. आप की एज क्या है? आप ये मार्शल गोल्ड स्मिथ वाला एक बहुत बड़ा भारी सा कोई नाम ले रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि जिलियन ई लर्निंग कोई चीज़ है. जिलियन क्या चीज़ है? फिर आप देखने में एक बच्चे से लग रहे हैं मुझे, तो आप ये फाउंडर और सीईओ और पता नहीं क्या कुछ है. शेयर सम ऑफ द डिटेल्स ऑन योर पर्सनल एस्पेक्ट एज वेल. So almost 5 years ago, I remember it was the same holy month of Ramzan,
when I discussed the prospects of e-learning with a friend of mine, and he was also he was doing a job and was also doing certain freelance and online gigs at that time. So I discussed the prospect of e-learning with my friend, और उनके साथ हमने इस चीज को डिस्कस किया, और वो बहुत ज्यादा चीजी, बहुत ज्यादा, यानी कि पहले तो मुझे थोड़ा टाइम लगा उनको ये बताने में कि ई लर्निंग है क्या. सो उनको थोड़ा समझने में, देखने में, और स्टिल वो इस चीज को ग्रास्प नहीं कर सके. और फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार भाई इसकी कोई सैंपल्स दिखाओ, इसका कोई ना विजुअल एस्पेक्ट भी मुझे दिखाओ कि ये ई लर्निंग होती क्या है और ये किस चीज का नाम ले रहे हो अचानक से ई लर्निंग, व्हाट इज ई लर्निंग. तो मैंने उनको बताया कि ई लर्निंग इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कन्वेंशनल ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज. और ये चीज हमने डिस्कस की और उसके बाद बात आई गई हो गई लिटरली. जाहिर बात है, अपनी जॉब में वो बिजी, अपने कामों में मैं बिजी. उसके कुछ अरसे के बाद क्योंकि आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड मैंने ये सोचा कि अगर मैंने इस चीज को बिल्ड करना है तो मुझे ये चीज अपने ऊपर बिल्ड करनी चाहिए. मैं खुद इसको बिल्ड करना चाहूंगा. और ये मेरा मैसेज है, क्योंकि आपने बोला कि मैं जवानों का एम्बेसडर हूँ जिन्होंने ग्रेजुएट कर लिया है, अब वो क्या कर सकते हैं आगे. द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से टू दोज पीपल इज कि आप बजाय इसके कि मार्केट में इस मिशन से या इस मेंटेलिटी से एंटर हो रहे हो कि आपने एक जॉब करनी है, एक मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन में जाना है और एक जॉब करनी है और 6 डिजिट सैलरी लेनी है और ऑल दीज थिंग्स, आप ये सोचें कि क्या आप कोई एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, अपने कंट्री के लिए, और अपने साथ क्या आप एटलीस्ट 2 से 3 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. अगर आप ये कर रहे हैं तो आप एक मल्टी नेशनल को ज्वाइन करने से ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं. सो दैट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट. सो हमने इसको स्टार्ट किया था सर 2017 में, और ये स्टार्ट जो मैंने किया था इसकी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल सी छोटी सी स्टोरी ये है कि एक फ्रीलांसिंग नेटवर्क पे जहां से मैं कुछ फ्रीलांसिंग गिग्स करता था, वहां से मुझे एक ई लर्निंग का प्रोजेक्ट मिल गया फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन नॉर्थ अमेरिका. और वो प्रोजेक्ट एक सर्टेन अमाउंट का था, और उस टाइम उस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक टीम दरकार थी जो ऑनेस्टली मेरे पास नहीं थी उस टाइम, क्योंकि मैं तो एक फ्रीलांसर था और मैं एक बिजनेस ग्रेजुएट हूँ और मैंने खुद ही कुछ छोटे मोटे टूल्स डिजाइनिंग के और इस तरह सीख के, तो मैं तो छोटी छोटी चीजें करता था क्लाइंट्स के लिए. तो मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, प्रोजेक्ट मैंने विन कर लिया है, अमाउंट भी बहुत अच्छी है, मुझे फायदा भी दे सकती है, और इनफैक्ट ये ऐसी अमाउंट है जो मुझे किक स्टार्ट भी दे देगी, जंप स्टार्ट भी दे सकती है. मैंने वो प्रोजेक्ट सबलेट कर दिया किसी थर्ड पार्टी को यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म, और उनके दरमियान में जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस से मैंने अपना पहला ऑफिस खोला इन पाकिस्तान. और जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे, ही ज्वाइंड मी फॉर सम टाइम, 4 से 5 महीने उन्होंने मुझे ज्वाइन किया सिर्फ मुझे हेल्प करने के लिए कि मैं सेटल डाउन हो जाऊं. और उसके बाद क्योंकि उनकी कुछ अपनी मसरूफियात थी, ही लेफ्ट, और फिर मैंने इस कंपनी को बिल्ड किया फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम 2017. और आज माशाल्लाह हमारे पास 10 से 12 लोगों की टीम है. वी आर दी ओनली अवार्ड विनिंग ई लर्निंग कंपनी फ्रॉम पाकिस्तान. मैंने पाकिस्तान को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंट किया है. करंटली हम एंटरप्रेन्योरल वर्ल्ड कप में compete कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमने लेवल राउंड 1 पास किया, राउंड 2 पास किया, राउंड 3 पास किया, और अब हमने राउंड 4 भी पास कर लिया. सो वी आर करंटली एट राउंड 4 ऑफ द वर्ल्ड कप, जहां पे मिलियंस ऑफ स्टार्टअप ज्वाइन, और अब हम थाउजेंड्स के नंबर में रह गए हैं, और हमें कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स उन्होंने दिए हैं. इसके अलावा भी ये वर्ड वॉन इंटरनेशनल अवार्ड्स इन ई लर्निंग इन पाकिस्तान. सो दिस इज वेयर वी आर एट करंटली. और इसके अलावा लास्ट ईयर आई गॉट एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मार्शल गोल्डस्मिथ, और उसी के दरमियान में आई डिसाइडेड टू पॉलिश माय ओन स्किल्स दैट आई शुड गो फॉर अ सर्टिफिकेशन. सो आई डिड 360 लीडरशिप असेसमेंट फ्रॉम मार्शल गोल्डस्मिथ फर्स्ट, and then I did leadership certification from Marshall Goldsmith as well. So currently I'm also working as a one-on-one executive leadership coach and also team leadership coach for different organizations. Alhamdulillah, एक साल में मैंने 3 से 4 different sessions run किए हैं, which have been very very successful. Alhamdulillah. और इसके अलावा जो करंट लोग हैं जो अब ग्रेजुएट करके इन हालात में बैठे हुए हैं, जॉब्स उनको नहीं मिल रही, द फर्स्ट थिंग जिसका मैंने स्टार्ट में बोला कि पहले तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि डू समथिंग ऑफ योर ओन.
सेकंड, वो क्या कर सकते हैं ई लर्निंग से रिलेटेड, कि ई लर्निंग के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं, ई लर्निंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, और पाकिस्तान में जिलियन ई लर्निंग ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कॉर्पोरेट लर्निंग के लिए जो और किसी और कंपनी ने लॉन्च नहीं किया आज तक। हमारी अपनी एक लाइब्रेरी है ऑफ ओवर 100 कोर्सेज, और हम जनरल पब्लिक को वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, फॉर अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, द कॉस्ट दैट एनीवन कैन अफोर्ड। इट्स अ कॉस्ट जो सुन के लोग हंसते हैं कि ये क्या कॉस्ट है। सो इन कॉस्ट्स के ऊपर कुछ चीजें, कुछ प्रोग्राम्स आप हमें हमारे भी हंसने अवेलेबल का मौका दें, आप हमें भी हंसने का मौका दें। आप नौजवानों को बताएं कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं और मैं आपसे एक कॉर्पोरेट के बजाय इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक कोर्स लेना चाहता हूं, मुझे कितने पैसे देना पड़ेंगे, बताएं मुझे। जस्ट $25। ओके, दैट इज़ ग्रेट। इरहान साहब, मुझे ये बताएं कि ये $25 दे के मैं ई लर्निंग का कोई एक सर्टिफिकेट आपसे ले लूँगा और मैं ई लर्निंग सर्टिफाइड भी हो जाऊँगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे वाई फॉर मी इट इज़ गोइंग टू बी मैंडेटरी टू शिफ्ट टू ई लर्निंग। मैं क्यों ई लर्निंग पे जाऊँ? आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ। मैं अभी करंटली इतनी मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो वाई मैं नए लंच अपने लिए क्यों लूँ? वाई टू हैव एक्स्ट्रा बर्डन ऑन माई शोल्डर्स? अच्छा, शिफ्टिंग टू ई लर्निंग, जिस तरह आपने कहा मैंडेटरी, विद द करंट सिनेरियो एंड करंट सिचुएशन, ऑब्वियसली मैंडेटरी लग यही रहा है कि ये मैंडेटरी है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, आई डोंट थिंक कि ई लर्निंग विल या ये ई लर्निंग का जो ट्रेंड है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पोस्ट कोविड-19 रुक जाएगी। ये दिस इज हियर टू स्टे इन माय ओपिनियन। जिस तरह से हम इंडस्ट्री को देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, हमें ये लगता है कि ये ट्रेंड रहेगा पाकिस्तान में भी और ग्लोबली। ग्लोबली तो ऑलरेडी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, सो पाकिस्तान के अंदर द ट्रेंड हैज स्टार्टेड और लोग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। सो व्हाट्स इन इट फॉर यू? नंबर वन, जब आप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आते हैं या जब आप ई लर्निंग या डिजिटल लर्निंग की तरफ आते हैं, तो पहली ईज जो आपको दी जाती है वो ये है कि इट्स कॉल्ड सेल्फ पेस स्टडी। आपने सेल्फ पेस स्टडी का मतलब यह है कि जब आपका दिल किया, आपने ट्रेनिंग अपनी ली। आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आपने ये कोर्स आज ही लेना है, इसी टाइम फ्रेम में लेना है, अपना काम छोड़ के लेना है, चीजें रोक के आपने इस तरफ फोकस करना है, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना है। आपने अपने मेंटल कैपेसिटी, अपनी ईज पे, अपने कंफर्ट पे उस कोर्स को लेना है। सो दैट इज द फर्स्ट लग्जरी जो आपको ई लर्निंग देता है। सेकेंड चीज, आपके लिए इसमें क्या है? घर बैठ के यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स। जब आप ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी आपको सर्टेन एस्पेक्ट्स में मास्टर कर देती है और एकेडमिकली आपको एम्पावर कर देती है। सो कई सारे यंग ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, बिजनेस ग्रेजुएट्स, आईटी ग्रेजुएट्स, मीडिया साइंसेस के ग्रेजुएट्स, जो हमारी टीम का हिस्सा हैं लोग, सोशल मीडिया के ग्रेजुएट्स। एंड एक व्हेन मिनट दे इरहान भाई, बात ये है, नहीं, लेट मी इंटरप्ट यू विद ड्यू अपॉलजीज। बात ये है प्लीज कि प्लीज बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि डिग्रीज जो हैं यूनिवर्सिटीज़ दे देती हैं और वो ग्रेजुएट आपके पास आते हैं कि यार हमें काम चाहिए। इन द मीन टाइम, मैं इससे पहले कि मैं अपने सवाल पे जाऊँ, उस्मान गुलजारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। वो कह रहे हैं ग्रेट टू सी इल्हान चावला लाइव, हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स अबाउट हिम एंड थैंक यू। या हियर कम्स अनदर क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था कि आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आपके पास आते हैं, जी डिग्री मिल गई, काम नहीं मिल रहा। ये जारिक अब्बास शाह साहब हैं, वो कहते हैं कि लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये जो बात आप कर रहे थे, लेकिन आगे वो ये कह रहे हैं कि उनकी डिग्री यूजफुल नहीं होती। देन ई लर्निंग का भी उन्हें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। ई लर्निंग का भी उन्हें कोई बेनिफिट या कोई फायदा नहीं होता है। मुझे ये बताएं कि मैं ई लर्निंग के ऊपर $25 आपको क्यों दूंगा? मुझे कोई फायदा दिखाएं। बिल्कुल सही। दिस इज वेयर आई वाज कमिंग। जो जब ये क्वेश्चंस आए, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जब ये जो ग्रेजुएट्स हैं, बात वहीं से कनेक्ट करता हूँ, ये जो ग्रेजुएट्स जब हमारे पास आते हैं तो हमें नजर आता है कि दे हैव स्किल्स, एकेडमिकली दे आर एम्पावर्ड, बट दे आर लैकिंग इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। जब आपने इंडस्ट्री में आना होता है और जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो आईटी ग्रेजुएट को, बिजनेस ग्रेजुएट को, मीडिया ग्रेजुएट को ये तो सिखा देती है कि आपने आईटी के लोगों ने कोड कैसे करना है, बिजनेस ग्रेजुएट के डिफरेंट मेजर्स हैं, उसने मार्केटिंग, सेल्स और एचआर कैसे करना है। बट इन माय ओपिनियन वो लैक कर रहे होते हैं प्रोफेशनल स्किल्स में, सॉफ्ट स्किल्स में। सो जो जारिक अब्बास साहब ने क्वेश्चन किया है
कि मुझे फायदा नजर नहीं आता, इसका फायदा ये है कि जब आपने ग्रेजुएशन कर ली और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आपने आके हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्स लिया इंटरव्यूइंग स्किल्स फॉर इंस्टेंस, आपने कोर्स लिया पर्सनल डेवलपमेंट पे, आपने एक कोर्स लिया हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट जॉब पे, आपने एक कोर्स लिया कि हम कैसे या हाउ आई कैन इम्प्रूव माय स्पीकिंग स्किल्स। तो ये कोर्सेज आपकी एबिलिटी में, आपकी एकेडमिक एम्पावरमेंट में आपको मजीद एम्पावर करते हैं कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं और आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं या आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं, तो यू फाइंड वेज एंड स्ट्रेटेजीज टू फाइंड जॉब्स, यू फाइंड वेज एंड स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन इंटरव्यूज, बजाय इसके कि आप 3 से 4 इंटरव्यूज में जाएं और वहां पे जाके खुदा ना खास्ता आपको जॉब नहीं मिल रही, आप डिप्रेस हो रहे हैं, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं। आप जब ये कोर्सेज लेते हैं तो आप एम्पावर्ड फील करते हैं, प्लस यू हैव सर्टेन सर्टिफिकेशंस इन योर रेज्यूमे, क्योंकि जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं और आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान में और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई होती हैं। So when you tell them that we have certain certifications and instead of just doing these things, we can also empower the organization या हमारी कैपेसिटी और एबिलिटीज में ये चीजें शामिल हैं, तो दिस इज द एज ऑफ ई लर्निंग। और ये चीजें आपको जबरदस्ती किसी ने नहीं कराई, ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग पे हैं, यू हैव सर्टिफिकेशंस एंड यू आर डूइंग दीज थिंग्स ऑन योर ओन। आपने इसके लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है कि ये चीज मुझे हेल्प करेगी, और इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज मुझे फ्यूचर में या मेरी जब मैं इंडस्ट्री में एंटर होऊंगा तो आई विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दीज प्रोग्राम्स। सो दिस इज ये बताएं इल्हान भाई, मुझे ये बताएं कि मैंने ये काम कर लिया, एग्जांपल ये है कि मैंने ई लर्निंग कर ली, नाउ मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, ई लर्निंग करने के बाद मैं एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गया हूँ, मैंने सारे कोर्स कर दिए आपके, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? हाउ आई एम गोइंग टू अर्न मनी व्हाइल आई एम कन्फाइंड टू माय होम ओनली? Okay, this is an interesting and very challenging question, honestly. Or it's a bit of a challenge for everyone in the globe at the moment. ठीक है, it's not just in Pakistan. तो इसके लिए देखें, ई लर्निंग के आगे जिस तरह हमने प्रोग्राम्स की बात की है, देर आर सर्टन ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स, सर्टन ट्रेनिंग कैटेगोरीज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अलग हैं, सॉफ्ट स्किल्स के प्रोग्राम्स अलग हैं, लीडरशिप के प्रोग्राम्स अलग हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स अलग हैं। सो फॉर इंस्टेंस आपने फरमाया कि जी मैं एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गया, और हम एज्यूम करते हैं कि आप किसी एक सर्टेन स्किल के एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गए, आपने स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स ली एंड नाउ यू फील दैट यू हैव गुड स्किल्स in, for example, in Adobe Illustrator, and now you think in programs ke baad I am sound enough to start earning or to start working. So the first thing that you can do obviously in these situations is to have a very good presence on social media and certain freelancing networks, because बेशक के हम अपने घरों में confined हैं, but remember that we all have certain personas and personalities and presence among in social media. सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम भी बात कर रहे हैं, who would have thought 10 years ago that Facebook would have facilitated such an interview? Who would have thought 10 years ago that we would be talking and a lot of people, mashallah, would be listening to this conversation and be benefiting from this? So maintaining a good social media presence and having your profiles on certain social media aspects, ये एक पहला और बड़ा mandatory और important aspect होगा। सेकेंड एस्पेक्ट इसमें क्या होगा कि अगर आप एक स्किल के एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, सो आपका इनिशियल स्टेप ये होना चाहिए कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे या जब आप अपने आप यू वर प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन, यू क्रिएट अ प्रोफाइल फॉर योरसेल्फ, और आप कुछ डिफरेंट डेमोज, डिफरेंट प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऐड कर लेते हैं जो आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। द थर्ड थिंग वुड बी you aggressively look and start applying for jobs and start communication within your networking areas, your friends, your colleagues, your seniors in university, people जिनको आप जानते हैं जो different organizations में या different capacities में काम कर रहे हैं, and you start looking for connections within your own network, और एक ripple effect आप generate करते हैं जहाँ पे आपके लिए reference से कोई चीज आपको मिल सकती है या आप उसको कर सकते हैं। So when you reach that level and you have all the presence on social media and you have these connections with you, kuch certain networkings with you, there is a very slight chance that you miss on certain opportunities. Opportunities will come your way and then it's on you कि how you grasp them. क्योंकि आप इसमें enter हो रहे होते हैं तो at times
कॉन्फिडेंस भी लो होता है, आप चीजें सही करके भी क्लाइंट को दिखाने में थोड़ा सा हेजिडेंट हो जाते हैं, या आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होते हैं बार बार कि ये मैंने सही किया है, ये मैंने गलत किया है, क्या ये डिजाइन ठीक है, फॉर इंस्टेंस क्या इसके बैक एंड पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो ठीक है, या क्या ये स्टोरी बोर्ड ठीक है। डू नॉट हेजिटेट, आपने सीखना है अपनी मिस्टेक से। इफ यू आर नॉट विलिंग टू मेक अ मिस्टेक, you are not willing to learn further. So Why make to mistakes. learn? Why to Bilkul. learn at the cost of others? Why to learn on the Yeah. cost of others? If you are learning by taking having mistakes on the cost of organization जिसको आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये नाइंसाफी नहीं है कि आपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर काम उठाया विद द फैक्ट यू नो एट योर कोर ऑफ योर हार्ट कि यू आर नॉट एबल टू डिलीवर इट, और आपने कहा कि चलो यार मैं लर्न करूंगा, मिस्टेक करूंगा, मैं सीख जाऊंगा। उनका टाइम, उनका रिसोर्स तो आपने ज़ाया किया। व्हाट डू यू से अबाउट इट? अच्छा, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ। ये तो ये है कि आई नो दैट आई कैन नॉट डिलीवर समथिंग बट स्टिल आई एम विलिंग टू डू इट। सो ये तो फ्रीलांसिंग का रूल नंबर 1 है। नॉट इवन इन फ्रीलांसिंग, आई प्रैक्टिस इट। और बहुत रिसेंटली मेरे साथ एक सेम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ वेरी गुड क्लाइंट ऑफ माइन ऑन समथिंग which I couldn't do, which I couldn't deliver. So I was very upfront about it, and I told them that this is something that I cannot deliver. I did not see the value of the project, even it's millions of rupees. So you have to be very upstraight about that. So still, I'll come to your question and say कि अगर आपने वो चीज उठा ली and you are learning on the costs of others, so in my experience that has happened with me as well. Obviously मैंने भी कहीं से start किया है और मैंने भी mistakes की हैं और आज भी I am making mistakes. Everyone makes mistakes. So it's very normal, it's very natural. In my opinion, organizations give you that space, give you that liberty as well. अब बहुत कम मैंने देखा है, या it happens very seldom कि आप ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टेक करें और आप एक न्यू एंट्रेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, आप अभी आई हैं और आपके ऊपर पहाड़ तोड़ दिए जाएं गम के या जुल्म के। सो होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको थोड़ी सी स्पेस दे रही होती है, और आपके जो भी इमीडिएट सुपीरियर हैं या जो इमीडिएट बॉस हैं या जो टीम लीड हैं वो आपको साथ लेकर चल रहे होते हैं। और आप यूजुअली जब आप इस तरह से प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो यू स्टार्ट बाउंसिंग ऑफ आइडियाज with your friends, with your colleagues, or even with your other team members if you have some. अगर आपके टीम मेंबर्स नहीं है तो इमीडिएट टीम लीड से भी आप बाउंस ऑफ करते हैं अपने आइडियाज को कि दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग ऑन, ठीक है ना, तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट डू यू एडवाइज। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड दिस इज वेयर द लर्निंग प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट्स। जिस तरह मैंने पहले बात की, अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे यू विल नेवर एवर लर्न अ न्यू थिंग। जिस तरह अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो यू विल नेवर एवर लर्न अ न्यू थिंग। सो द सेकंड पॉइंट कम्स इन कि व्हेन अ प्रोजेक्ट इज गिवन टू यू, या जब आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठा रहे हैं फ्रीलांसिंग में, द फर्स्ट थिंग और द सेकंड थिंग टू डू इज आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वुड लाइक टू और एज यू वांट, extract as much information as you can from your client या from your boss or from your team lead. जब तक आपको पता नहीं होगा कि मैंने डिलीवरेबल क्या है मेरा, उस टाइम तक naturally you will commit more mistakes, or even you will उसका नहीं कहना चाहिए बट इवन ब्लंडर्स हो जाते हैं लोगों से, एंड वी फेस इट एज वेल। नए बच्चे आते हैं और एक ही दफा चीज सुन के इसी हेजिटेंसी में, शाइनेस में वो चले जाते हैं कि हमने क्वेश्चन पूछा तो पता नहीं सर को गुस्सा ना आ जाए, या पता नहीं सर क्या समझेंगे कि यार हमें समझ ही नहीं आ रही। सो इन चीजों को छोड़, यानी इन चीजों को आपने यू पुट दीज ऑन द बैक बर्नर. You come on front and you ask questions, you ask things of your boss, Okay, of other Hilan, people. I think इस तरह से you have beautifully quoted the micro state of what a new person can work upon and how he is going to look alike. आपने माइक्रो लेवल पे एक इंडिविजुअल या एक सेटअप की बात तो कर ली। नाउ माय क्वेश्चन इज कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टुडे इज के ई लर्निंग का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है, एंड लुक एट पाकिस्तान विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड वाइड व्यू। पाकिस्तान वर्सेस होल वर्ल्ड in next 6 months, 1 year, and my status as a new startup or a new entrant in the industry. अब तीन एस्पेक्ट्स को आपने कन्वर्ज करना है। मैं एक न्यू स्टार्टअप हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, ई लर्निंग एक्सपर्ट हो चुका हूँ। मेरा एक मुल्क है पाकिस्तान जिसमें ई लर्निंग अपनी बडिंग फेज में है, और एक पूरी दुनिया है जो आज से 6 महीने बाद ई लर्निंग का फिनोमेना उसके डीएनए का हिस्सा बन चुका है। यू कन्वर्ज ऑल दीज थ्री थिंग्स टुगेदर। बिल्कुल ठीक है जी। सो
जिस मैंने बताया या जिस मैं आई एम एक्सपीरियंसिंग, this industry is growing and it's growing at a very rapid pace. If I tell you the annual revenue of e-learning in 2019 was just above $2 trillion. So you can imagine that at what rapid pace this industry is growing. So $2 trillion was the annual budget, and out of this $2 trillion, around 60%, roughly around 60% came from corporate learning. So corporate learning obviously is an important aspect, not only in Pakistan but globally. Globally, organizations, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जी हम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के एरा में है, दिस इज एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रांसफॉर्मेशंस होती रही, जिस तरह से हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से देखा कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस हैव मैच्योर्ड. तो अभी ऑर्गेनाइजेशंस की जो मेन फोकस है वो है ऑन डेवलपिंग कैपेसिटी, बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर देयर ह्यूमन एसेट्स. और ह्यूमन रिसोर्सेज के वर्ड की जगह हमने सुना है कि ऑर्गेनाइजेशंस इवन इन पाकिस्तान हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड ह्यूमन एसेट्स. सो जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो गया फ्रॉम योर रिसोर्स टू एन एसेट. सो अब इन फ्यूचर नेक्स्ट 10 years में वो वाली ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को पीक पे दिखेगी जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को एसेट्स में कन्वर्ट कर लिया. जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को एसेट में कन्वर्ट नहीं किया, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड, और बड़ा रैपिडली वो अपने आप को रेस से आउट देख रहे हैं. सो ई लर्निंग विल हेल्प यू एट अ रैपिड पेस टू कन्वर्ट योर रिसोर्सेज टू एसेट्स. क्योंकि मैंने बता दिया कि ई लर्निंग के जो मेन एडवांटेजेस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि इट इज सेल्फ पेस. आपको कोई प्रेशर नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई आपको आपका काम छोड़ के मजबूर नहीं कर रहा है कि ये ट्रेनिंग लेनी है. आपने अपनी जिंदगी के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 3 दिन निकाल के 27 घंटे नहीं स्पेंड करने एक हॉल में और एक ट्रेनर को आप सिर्फ सुन रहे हैं. नो ऑफेंस टू ट्रेनर्स, बट द थिंग इज कि ई लर्निंग ने आपको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर दिया कि आप अपनी ईज के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लें, आप सर्टिफिकेशंस लें और आप ग्रेजुअली अपने आप को बिल्ड करें. आप ई लर्निंग में छोटी छोटी चीजें सीखें और आप उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाएं. आई थिंक इल्हान भाई यू हैव हिट द जैकपॉट. और फिर आपने कहा कि नो ऑफेंस टू द ट्रेनर्स, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिटी के साथ बता दूं कि, और ये हमारी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है कि दीज टू थिंग्स विल गो साइड बाय साइड, है नहीं? ऑब्वियसली. यानी कि IIT इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग्स या इन पर्सन ट्रेनिंग्स की अपनी यूटिलिटी कभी भी खत्म नहीं होने वाली. द पीपल लिसनिंग टू आवर डिस्कशन टुडे ऑन द फोरम, ऑडियंस जो हमें सुन रही है, यू टेक इट पॉजिटिवली. यानी कि ये दोनों चीजें मर्ज होके एक ब्लेंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस दे रही होंगी एक ऑडियंस को. Exactly. और ब्लेंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो पहले से बेहतर होगा. वो एक्सपीरियंस होगा जो सिर्फ इन पर्सन ट्रेनिंग से नहीं मिल सकता, ये वो एक्सपीरियंस होगा जो सिर्फ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता. गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू सेशन, इल्हान भाई, यू हैव टॉक्ड अबाउट ई लर्निंग ऑन द ओवरऑल सिनेरियो, यू हैव टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल कैपेसिटी. मुझे ये बताइए कि आपकी वो ऑडियंस जो इस वक्त आपको सुन रही है और आपको एट ए यंग एज एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप के तौर पे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पे देख रहे हैं आपको लोग, आप उन लोगों की इंस्पिरेशन के लिए अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ एग्जांपल्स बताइए, अपना कोई टिपिकल डे बताइए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जहां पे आपने कोई एडवर्सिटी फेस की एंड यू केम आउट विक्टोरियस आउट ऑफ इट as a new learned person out of it. That will make new people, new startup people, university graduates feel more elevated and motivated for themselves. बिल्कुल ठीक है. Before going to that, I'll take just 1 minute to say or to build on the comment that you have just made. ILTs and e-learning, ILT plus e-learning is equal to blended learning. That is the equation that trainers and e-learning people have in their mind at the moment. और मैंने जिस तरह बताया कि this is where we are headed. Although कुछ ऐसी चीजें जो ILTs में वर्कशॉप्स होती थी डेज की, वीक्स की, वो शायद कॉम्पैक्ट और स्मार्ट हो जाएं और उनके कुछ हिस्से ई लर्निंग में कन्वर्ट हो जाएं और जहां पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो इंस्ट्रक्टर ने करनी हो. बट अगेन आई विल टेल यू, yes, they are going to stay, but we are the only organization that is also working on virtual reality. So maybe, you know, in an organization, people are looking at you in virtual reality, और आप यहीं पे बैठ के अपने ऑफिस में उनको ट्रेन कर रहे हैं, they are with you in a virtual environment and they are learning new things from you. So this is where inshallah we are headed, and this is where we will take Pakistan's industry as well. Coming to your question,
I would start by saying that Allah has been very kind, and with the grace of Allah, I consider myself as one of the pioneers of e-learning in Pakistan, especially. Uh, uh, जो आपने कहा कि आप अपनी एग्जांपल दें, so example would be कि 4-5 years ago when I started, and I contacted a lot of multinational organizations in Pakistan, a lot of training houses in Pakistan who were at the top of their domain, who were doing a lot of amazing work and a lot of amazing things. जब मैंने इन लोगों को अप्रोच किया और इन ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया, तो लिटरली उनमें से 60 to 70% पॉपुलेशन तो ऐसी थी जो जिन्होंने दे लॉफ्ड एट मी लिटरली कि ये किस तरह की बातें कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, कौन सा लिंडा, कौन सा कोर्सेरा, भाई यहाँ पे ये नहीं चलता, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होता है, सामने लोग बैठते हैं, लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं, जब तक लोग ये नहीं करते वो सेटिस्फाई नहीं होते. दिस इज वेयर वी वर्क. और ये सिर्फ 3 से 4 साल पहले की बात है. और आज उन्हीं लोगों में से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया इन 2019, इन 2020, और उन्होंने मुझे कहा कि लेट्स वर्क ऑन सम कोलैबोरेशंस और हमें आप अपनी सर्विसेज रेंडर करें बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स ई लर्निंग. सो इट डज नॉट took more than 2 years or so. तो एक तो ये बात हो. जो एडवर्सिटीज की बात है, देयर आर मैनी सच थिंग्स जो हमने फेस की. लाइक जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास कंटेंट के, हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते थे बिकॉज हम एक स्टार्टअप थे, हम बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे थे और हमारे पास कैपेसिटीज नहीं थी कि हम बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स को टेक ऑन कर सकें. बट स्टिल हमने मेजर प्रोजेक्ट्स को टेक भी किया, को यानी क्लोज भी किया. और ना सिर्फ उनको क्लोज किया, मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के कोई 3 और 4 बजे तक रात को भी हमने काम किए हैं. और हमने उन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने की कोशिश की और उसके अंदर मैंने खुद अपनी टीम के साथ बैठ के एक इक्वल रोल प्ले किया और उनके साथ बैठ के प्रॉपर काम किया. इट्स नॉट दैट कि आई वाज बॉस और मैं सिर्फ बैठा हुआ था और टीम को कह दिया अभी तुम काम करो, मैं यहाँ बैठ के मूवीज देख रहा हूँ. उनके साथ बैठकर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में. और आज भी जब हमारे पे वर्क का लोड बढ़ता है, जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह आपने कहा कि न्यू लोगों को कैसे किया जा सकता है, पर्सनल एग्जांपल. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट एवर thing you are doing as a freelancer, you should be at an expert level. If you are not an expert, at least you should be at an advanced skill level of that particular domain, so that in rainy days you yourself can work on, you can have your hands on deck. आप खुद भी कंट्रीब्यूट कर सके इन रियलिटी टुवर्ड्स योर ओन प्रोजेक्ट्स. अगर आप खुद उस चीज में नहीं कर सकते, अपने आप को कंट्रीब्यूट, आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, तो यू आर एट अ लॉस. ठीक है ना. यू विल solely be depending on things that your employees or your team tells you, and they are seldom wrong as well. तो कभी कभी वो गलत भी होती. सो एक तो ये पॉइंट हो गया. सो सेकंड थिंग ये है कि जब हमने एक प्रोजेक्ट हमने किया फॉर दुबई एयरपोर्ट और उसके अंदर कंसेक्यूटिवली एक वीक में हम 4 बजे अपने घरों को आए और उसके साथ मैंने खुद अपनी टीम के साथ बैठकर काम किया और प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की. और हम 4 बजे वापस आते थे और हम 8 बजे वापस ऑफिस होते थे द वेरी नेक्स्ट डे. 4 घंटे की नींद ज्यादा से ज्यादा हम करते थे, बल्कि नींद क्या करते थे, हम वापस भी जाते थे, सोते भी थे, फिर सुबह नाश्ता करके फिर वापस ऑफिस भी आते थे लिटरली. और मैं आता था तो मेरे 2 लोग उधर ही सो रहे होते थे कि सर हम गए ही नहीं, हम इधर ही थे. सो द थिंग इज कि दिस इज योर डेडिकेशन. सो जब तक आप डेडिकेटेड नहीं है, जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, आई डोंट थिंक यू कैन एवर अचीव एनीथिंग. इवन इफ यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, आप डेडिकेटेड नहीं है, आप अपने काम से लॉयल नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं है, there is no way that you are going to progress or you are going to transform yourself from a resource to asset. Again, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है. इट्स नॉट लाइक, अनफॉर्चुनेटली स्पून फीडिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है. सो इट्स नॉट लाइक आपको कोई आके बताएगा कि ये चीज आपने करनी है. यू नीड टू स्टेप अप एंड यू नीड टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. सो आई गेस दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच एलान. मैं ख्याल है कि आपने वाकई बहुत कॉम्प्रीहेंसिव आंसर दिया. बिफोर वी क्लोज दिस डिस्कशन, हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि आर देयर एनी लास्ट मिनट एडवाइसेस फ्रॉम योर साइड? डू यू थिंक दैट देयर आर फ्यू ऑफ द बुक्स और लिटरेचर और एनी वीडियो क्लिप्स विच यू यूजली see or watch or read and you spend your time on that learning aspect for yourself? कोई ऐसी चीज़ें जो आप खुद अपने आप को डेवलप करने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, कुछ भी हो, और आप ये समझते हैं कि यार मैं अगर अपनी ये पर्सनल चीज़ आज शहजाद के साथ शेयर कर लूँगा या ऑडियंस के साथ शेयर कर लूँगा और वो इसको रेप्लिकेट कर लेंगे तो उनका भी फ़ायदा हो सकता है. जस्ट एज ए लास्ट मिनट एडवाइस फ्रॉम योर साइड, you share those details with us if you have any. Yes, absolutely. The first thing that I would like to share, obviously,
जिस तरह मैंने पहले भी कहा, ask questions, do not hesitate, and always take the first step. Taking first step is the most critical and the most difficult part. You think in a lot of ways. When I wanted to start this venture, I had a great job. I discussed this with my family. मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया और मेरी फैमिली में 2 लोगों ने कहा कि नहीं यार, बिजनेस छोड़ो, जॉब है, सिक्योर है, हर 5 को पे भी आ रही है, गाड़ी भी है तुम्हारे पास, हर चीज है, सुकून से जाते हो, 2 दिन छुट्टी करते हो, क्या तुम ये सर दर्द ले रहे हो? और 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा, जिसमें से मेरे फादर सबसे पहले थे जिन्होंने ये बोला कि जबरदस्त, लेट्स डू इट. तो you find a person who is always at your back. So when you hit the wall, you have somebody to bounce off, honestly. So ये हो गया. जहां तक आपने कहा कि what do I read, honestly I read a lot of books. Reading a lot of books is very very important. ठीक है, you need to develop a domain and expertise in certain aspects. Currently मैं कुछ 2-3 इंग्लिश लिटरेचर की चीजें पढ़ रहा हूँ क्योंकि आजकल टाइम इतना ज्यादा है, तो मेरी रूटीन है सहरी के बाद I read, and I read for hours, honestly. Around 4:15 I start, and even today I slept around 8:15 a.m. in the morning. I read for 4 hours, और मैं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कुछ novels और books को खत्म कर रहा हूँ. So reading that is very important. It keeps you fresh. It makes you learn new things as well. If you are working in an industry, for instance, you are an IT graduate, आपने freelancing के projects उठाए और आपको difficulty होती है client के साथ बात करने या उसको convince करने में, आप इस पर्टिकुलर डोमेन में जो भी मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, आजकल गूगल इज अ ब्लेसिंग. आप जाएं और आप सिंपली लिखें एंड यू विल फाइंड इवन बुक्स ऑनलाइन, इवन एप्स हैं ऑन आपके पास जिनमें आपको फ्री रेडिली वर्जन्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल. ऑल यू नीड टू डू इज डाउनलोड अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग इट. और पहले दिन आप 1 से 2 ही पेजेस पढ़ते हैं, बट ग्रेजुअली आपकी आदत बन जाती है और आप ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं. और आपको उस टाइम तक, फॉर इंस्टेंस, आप सोने से पहले सिर्फ 2 पेजेस पढ़ें, आप उस टाइम तक सो नहीं सकेंगे जब तक आप वो 2 पेजेस पढ़ते नहीं. एंड ग्रेजुअली यू बिल्ड ऑन दी हैबिट, और फिर आप 2 पेजेस से 2 चैप्टर्स, और 2 चैप्टर से आप आधी बुक पे चले जाते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट you need to do. And the second thing to do is obviously you find a mentor maybe, or you find an inspirational person maybe, और लाजमी नहीं है कि आपका उनसे कांटेक्ट हो right from the start. जिस तरह मैंने कहा कि गूगल इज अ ब्लेसिंग, जब आप गूगल के ऊपर जाते हैं एंड यू सर्च, तो a lot of people, you will find a lot of people who are doing exactly what you want to do, और वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपने जाना है. फॉर इंस्टेंस, सो आप देखते हैं कि उनके कोई सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, उनका कोई यूट्यूब का चैनल है, उनकी कोई वीडियोज हैं, उनकी कोई वेबसाइट्स हैं. यू start gradually following those people up, and you start looking at their life and how they built their life, if you have that information, or you see currently what they are doing with their life, वो क्या करते हैं, what is a unique thing about that person, and you try to pick one thing every day. आपने कोई बड़े टारगेट सेट करने की आपको जरूरत नहीं है, you pick one thing every day, and this is what I did. And I am honored कि कुछ अरसे पहले I went to a job fair at one of the FAST National University, का नाम सबने सुना. I went to a job fair there, and मुझे कोई 8 से 10 IT graduates आके मिले who knew me but I didn't know them. And I would say I do not have a very good social media presence. उस वक्त तो खैर बिल्कुल भी नहीं थी, अब थोड़ी सी मैंने इम्प्रूव किया, इसमें आप मेरी इंस्पिरेशन है बाय द वे. लेकिन ये है कि I literally didn't know, and they called me, Sir Ilhan, आप Zillion e-learning, and I said yes. सर हमने एक प्लेटफॉर्म अपने फास्ट के डेमो प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, हम आपको दिखाना चाहते हैं. एंड we were doing some research on our FYP. We were searching CMS, LMS, and we came across Zillion LMS. So हमने आपको देखा और हमने सोचा कि हम क्यों ना इस चीज पे काम करें. एंड इवन नस्क में अभी 3 अल्हम्दुलिल्लाह FYPs हैं जिनको मैं एज अ मेंटोर, इंडस्ट्री मेंटोर एंड एक्सपर्ट में सुपरवाइज कर रहा हूँ. सो द थिंग इज कि यू फाइंड समवन, लाजमी नहीं है कि आप उन तक पहुंच सकते हो, आप जस्ट देखें कि व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ यू कैन इंप्लीमेंट द थिंग्स दैट पर्सन इज डूइंग इन योर रियल लाइफ. सो taking the first step, asking a lot of questions, reading, and then जिस तरह वो कहते हैं ना कि किसी के हाथ पे बैत करना जरूरी है. So इसमें भी you need to have an inspirational person in front of you, जिसको आप देखें और in your low times भी आपको पता चले कि अच्छा यार नहीं, I have to pick myself up again. I have to walk and I have to walk and I have to achieve the target जो मैंने सोचा है कि मैंने achieve करना है. So that would be all from my experience, and that would be
a suggestion to the people, to the young people who are watching. Remember, I have had days where I did not sleep. मैं सोया नहीं और मुझे परेशानी थी कि मेरा बिजनेस कल क्या कर रहा होगा. और फिर कुछ ऐसे दिन भी थे जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं 4 बजे तक सुबह के काम कर रहा था. तो ups and downs will come, but obviously it's you who can pass through all these things और इसमें आपने सब कुछ खुद करा. I understand it. इल्हान साहब की लास्ट वर्ड्स ऑफ विजडम ये हैं कि you read a lot, you take the first step, you find the mentor and you start doing it. You read a lot, you find the mentor. इसके अलावा जो बात इल्हान साहब ने हमें आज बताई वो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये हुई है कि you have to have an excellence in whatever you do. आप एक्सपर्ट लेवल पे जाइए और अगर एक्सपर्ट लेवल पे नहीं जा सकते तो एटलीस्ट एडवांस स्किल लेवल पे ज़रूर जाइए ताकि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले चुके हों और आप अपनी टीम के ही फुल टाइम डिपेंडेंट ना रह सकें. इसके अलावा एक और चीज़ जो डिस्कशन में आई वो ये थी कि ब्लेंडेड लर्निंग इक्वेशन जो है वो कौन से दो कंपोनेंट्स के साथ मिलके बनती है. वन इज़ डिजिटल ई लर्निंग एंड द अदर वन वाज इंस्ट्रक्टर लेड इन पर्सन ट्रेनिंग्स. इसके अलावा Ilhan was kind enough to share his own experiences, his journey, his wisdom, and last but not certainly least was an offer जहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर भी आप नॉमिनल प्राइस के साथ बहुत सी कोर्सेज ऐसे हैं जो अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए ले सकते हैं. विद ऑल दैट स्टफ already in your pocket, I would once again pay my thanks to Ilhan for his time and wisdom sharing, and I hope and pray for your well-being. Ilhan, take very best care of yourself और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Thank you so much. Allah Hafiz.